What is CA? Citizenship Amendment Act. Correct. Under it, the minorities in Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan, there are six minorities who have faced persecution and discrimination. Among them, Hindus, Jains, Buddhists, Sikhs, Parsis, and Christians. So these six minorities who have been seeking asylum as of 2000, they will be provided But asylum where in the are country. Parsis and Jains in those countries? Yeah. Now the issue is when was it passed? It was passed in Lok Sabha on 10th December 2019 and in Rajya Sabha on 11th December 2019. Then why today to be implemented? Is there any Perhaps, question about the timing of? yeah, there is controversial timing that it is applicable from 31st December 2014, and that is a contradictory point and bone of contention also No, no, in no. the. My query is that it is being uh, promoted and popularized now onwards. Why now? Why not December 2019? अब आपको फोर्स में ला रहे हैं, ठीक है 2014 से है, आप जब भी लाते तो 2014 would be there. But when Yes. you had already passed it 4 years ago, why the notification is so late? Sir, Yes, sir. to correct the historical imbalance caused by partition by imperial powers. It takes you 4 years to start implementation. If it was historically undoing the historical wrongs, it takes you 4 years. Why didn't they implement immediately thereafter? Perhaps government knows better. It was the same government, yeah. Something is fishy with respect to the timings. It reflects that as if they were attempting to come in the election phase and the cash the votes in the return of this favor. Okay. Now the question is, what is the benefit? क्या फायदा होगा सीएस? पॉलिटिक्स मैं गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा की बात नहीं कर रहा, किसको फायदा होगा और किस तरह से फायदा होगा? So persecuted minorities of three of the countries like Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh would be अहमदिया परसिक्यूटेड माइनॉरिटी नहीं है क्या पाकिस्तान में? The Ahmadiyas are a part of a Muslim Even community. Shias are minority and persecuted as well. Sir, Ahmadiyas are Muslim and the Muslim society only. They are not In a part Pakistan, they are persecuted minorities. Yes, sir. Then but government of India chooses to call from communities like Hinduism, Buddhism. why? See, one thing which they have in their mind, but they will never tell you, and it is that in Islam there is no concept of nation. You have Darul Haram, the land of the enemy, and Darul Islam, the land of Allah. So why they want to leave the land of Allah to come to Darul Haram? So that would have been the question which they should have told clearly, but they won't because of that the minorities here will get annoyed. असलियत यही है कि वो ये चाह रहे हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में नेशन स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, चलो आपने उनको कर दिया एक्सक्लूड. द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नीड फॉर दिस लॉ? क्या पहले से हमारे यहाँ ऐसा कोई लॉ नहीं था दैट यू कुड गिव नेशनलिटी टू द पीपल हु कम टू इंडिया? था कि नहीं? तो फिर इस लॉ की क्या जरूरत थी? भाई आपकी जिसकी मर्जी होती थी, यू वुड गिव नेशनलिटी टू एनीबडी हु केम. अदनान सामी को आपने नेशनलिटी दी ना, क्यों दी? तो ऑलरेडी लॉ था अगर, तो व्हाट वाज द नीड फॉर दिस न्यू लॉ? बताओ, सीए की क्या जरूरत थी? यार आई एग्री, मेरा जो क्वेश्चन अभी चल रहा है कि यू ऑलरेडी हैड ए लॉ अकॉर्डिंग टू विच यू कुड गिव नेशनलिटी टू एनीबडी. पहले भी तो दे रहे थे ना. अभी लास्ट ईयर ही 120 पाकिस्तानी माइग्रेंट्स को, हिंदूज को आपने दिया नेशनलिटी.
अभी भी आप दे सकते थे। जब एक लॉ ऑलरेडी है तो सीए से क्या फायदा होने वाला है, क्या एडिशनल फायदा होने वाला है? क्योंकि सर पहले जो है वो इलीगल माइग्रेंट आते थे, माइग्रेंट तो इलीगल ही होंगे, क्या वो नेशनलिटी लेके आएंगे क्या? तो इलीगल माइग्रेंट आते थे, अब इसके जरिए सीए के आ गया, इसकी वजह से सर हो सकता है कि वो इलीगली नहीं बट गवर्नमेंट उनको डायरेक्टली लेके आए, गवर्नमेंट लेके आए, इनविटेशन भेजेगी कि आ जाओ भाई हमारे यहाँ वैकेंसी है? तो सीए तो सर सीधी भी आए। जी नहीं, जो प्रोसिक्यूटेड हैं वो आएंगे तो उनको जो है नेशनलिटी दी जाएगी। तो ये तो पहले से भी है क्राइटेरिया, मतलब प्रोसिक्यूटेड इज प्रोसिक्यूटेड, और सरकार किसी को भी दे सकती है, तो क्राइटेरिया ना भी करें सरकार दे देगी। एक्चुअली क्या है कि 2019 में मोदी जी ने अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू किया था बंगाल से। बंगाल में भी उस कंस्टिट्यूएंसी से जहां के एक कम्युनिटी है जिसके करीब 2 करोड़ लोग बंगाल से माइग्रेट हुए थे, पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे हिंदूज एट द टाइम ऑफ ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश मसला, और मोदी जी ने उनको प्रॉमिस किया था। अब ऑलरेडी वो वोटर है, उनको तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं था, बट बेनिफिट ये था कि दे वुड बी गेटिंग आई कार्ड्स ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, ताकि कोई उनको चिढ़ा ना सके कि तो बांग्लादेशी है जी, घुसपैठी हैं जी। बिकॉज ऑफ दैट बीजेपी ऑल्सो वन 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकॉज ऑफ दैट इन वेस्ट बंगाल, और 4 साल जो है चुप बैठे रहे, और वो जो है वो लोग नाराज हो गए। अब इलेक्शन का टाइम था, नाराज तो किया नहीं जा सकता, इसलिए इनको याद आया, इसलिए उन्होंने सीए लागू कर दिया। बड़ा टाइमली है। अब वो लोग नाराज हैं तो वो कितने खुश होंगे कितने नहीं होंगे, उनको भी तो कुछ समझ होगी ना भाई, कि अब हमारी फिर जरूरत पड़ गई है तो इन्होंने कर दिया। अब चलो मान लिया, कर दिया फिर भी, पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंट्री पे? ओवर पॉपुलेशन। यार 140-42 करोड़ है तो 44 हो जाएंगे तो कौन सी ओवर हो जाएगी यार? ऑलरेडी 4 करोड़ करीब इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेशी रह रहे हैं यार, उनसे भी जो आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो जो रह रहे हैं ऑलरेडी हैं, जब उसकी परवाह नहीं की, चलो आने दो 2-4 को और, डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा उस हिसाब से, बट व्हाट एल्स? 81 करोड़ लोगों को हम वैसे ही भूखे को खिला रहे हैं, 85 करोड़ हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सरकार की जेब से थोड़ी कुछ जाता है, वो तो हमारी जेब से जाता है। डेमोग्राफी का बहुत फर्क पड़ता है किसी भी कंट्री के लिए, और ये हमारी सरकारों ने शुरू से कभी नहीं सोचा। इवन इंडिपेंडेंस के टाइम पे ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स दे वर प्लानिंग टू गो टू पाकिस्तान, पर वहां के पीएम और हमारे पीएम के बीच एक समझौता हुआ, वो साहब दौड़े हुए आए, क्योंकि सर इतने सारे इंडियन मुस्लिम वहां चले जाएंगे तो वहां तो डेमोग्राफी वहां की बिगड़ जाएगी पाकिस्तान की। तो फिर समझौता हुआ कि अपनी अपनी माइनॉरिटी का ध्यान रखेंगे। हमने तो रखा, उन्होंने जितना रखा वो आप लोगों को पता है। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे आप 32 करोड़ से अगर आप 140 करोड़ 42 करोड़ हो गए है ना, उसके आने से 146 करोड़ हो जाओगे, पूरी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, पॉलिटी पे फर्क देर से पता लगता है, स्टेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आप लोग कितना भी कुछ भी करते रहो, डिविजन्स तो बढ़ने वाली हैं ही। डिविसिव फोर्सेस जो हैं उनका काम जो है, जब से सोशल मीडिया आया है, तो अगर यूनाइटिंग इंडिया फोर्सेस बढ़ी हैं तो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस भी बढ़ी हैं, और बराबर बढ़ी है। वो सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है उनको कर्टेल करने की। वो अलग बात है कि हो सकता है, आप याद रखना इस बात को, कि अगर बीजेपी दोबारा आती है अगर, तो एक काम तो वो करने वाले हैं कि वो सोशल मीडिया पे कंट्रोल करने जा रहे हैं। जितने भी लोग एंटी नेशनल कहें या एंटी गवर्नमेंट कहें, जो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, उनको ब्लॉक कर देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह का जो है उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है। खासतौर से आप नियो बुद्धिस्ट मूवमेंट है, पब्लिकली एंटी सनातनी है। इवन जो इस्लामिक चैनल्स हैं वो सोच समझ के बोलते हैं, लेकिन वो तो
तो इस तरह की टेंडेंसीज तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। मेरा तो मानना यह है कि अगर आप लोग सीएए का समर्थन करते हो तो अपने पापा को बोलो कि जो लोग वहां से आ रहे हैं एक फैमिली अपने घर में भी एडजस्ट करो। करोगे क्या? अगर नहीं करोगे तो आपको हक क्या बनता है? मेरे कंट्री में तुम लोग बाहर से लोगों के आय का वेलकम कर रहे हो तो अपने घर में करो ना भाई। एक खाली परसेप्शन बना देना कि सरकार जो है वो हिंदुओं के लिए कर रही है काम। हिंदुओं के लिए क्या किया है वो आप लोग, मैं बताता ही रहता हूं। मंदिर बना देना पहले तो सरकार का काम नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का काम था। वैसे भी कोई भी जो सोशल वर्क वगैरह जो कुछ भी एक्टिविटीज होती हैं वो पार्टी का काम होता है, गवर्नमेंट का काम नहीं होता। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि मंदिर का लिए मैं खुश होता अगर मंदिर के साथ यूनिवर्सिटी भी अटैच होती, तो जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम था, आई वुड हैव बीन हैप्पियर। पर एजुकेशन और हेल्थ के नाम पे तो कुछ करना नहीं है, परसेप्शंस क्रिएट करने हैं और इलेक्शन के टाइम पे ज्यादा होना है। इस चीज को ध्यान रखना। और अभी आपके साथ फिर वो आएगा, नेशनैलिटी वाला मुद्दा भी आएगा। तब आएगा तब बात करेंगे। लेकिन सीएए से देश का कोई भला होने वाला है, मेरे को तो कोई समझ आ नहीं रहा। आप लोगों को आ रहा है तो बताओ। दिल्ली में करीब 50,000 से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं इलीगली। क्या किया सरकार ने? नॉर्थ ईस्ट में जितने ज्यादा बांग्लादेशी हैं इलीगली रहने वाले, आप लोग उनको निकालते हो बाहर, जो है जो फिर दूसरे रास्ते वापस आ जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं। सरकार ने खुद रोहिंग्या बसाए हैं देश में, पता है आप लोगों को? नहीं पता ना? वही का परसेप्शन क्रिएट करना काम है सरकार का। और ये सारी परसेप्शन जो है चलेगी इलेक्शन तक, फिर अगले इलेक्शन में फिर कोई नई परसेप्शन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर वो एग्जाम में पूछता है तो यू विल हैव टू गिव प्रोज एंड कॉन्स बोथ एंड यू विल हैव टू टेक ए स्टैंड आल्सो। भाई अगर आप इसको टोटलिटी में देखो, ए वास्ट मेजोरिटी यू कैन इनवाइट टू द कंट्री द हिंदूज हु आर बीइंग परसिक्यूटेड एल्सवेयर। मेरा तो सवाल है भी 3 कंट्रीज ही क्यों? 67 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब 57 कंट्रीज हैं, सब में से बुला लो। ठीक है कि नहीं? बस तब भी ये जो है वो जो अगर आप उनको लेके आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके लिए रोजगार का इंतजाम करे, उनके लिए एजुकेशन का इंतजाम करे, उनके लिए हेल्थ का इंतजाम करे। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता।